Dear students, today we will be seeing about, we had seen about all the blood in CP, complete blood count, hemogram, blood grouping, cross matching, all those things we have seen. Today we will be dealing with the blood biochemistry. Blood biochemistry, usually the sample will be taken in the plain tube, in which there will not be any additives, and we will not be shaking that blood. We will just take the blood, put it in the container, and we will not be shaking it, because while shaking it will get hemolyzed, then you will not get, that won't be able to give you any result. So it will be it will get hemolyzed, so you will not have to take the blood. Now after taking the blood, how you will do the examination? So there are two parts of it, is serum and plasma. Serum is the one after taking the blood, we'll send the blood, we'll fill the form, we'll label the tube in which we have collected, the container in which we have collected, then we'll be sending to the lab. In the lab, they will put that sample in the centrifuging machine. In the centrifuging machine, they will be putting, and in centrifuge, that machine will be rotating the blood, and in that what will happen, all the hematocrits, they will be down, and the serum will be coming up, and in this serum they will be adding the coagulant to it, and after that plasma is obtained with centrifuging blood after addition of anticoagulant. In serum, will allow, after centrifuging, it will be getting separated, that will be the serum, and the blood will be separated, so the serum will be taken. But in plasma, after adding anticoagulant, they will be centrifuging the blood. So that is the difference between the serum and the plasma. Now what in biochemistry test, what all tests we will be doing? There are so many tests we do in the in blood chemistry, in blood biochemistry. The first thing we should be doing is plasma glucose estimation. Glucose is sugar estimation. So sugar अपन किसमें करते हैं? We used to do normally in the diabetic patients, in pregnancy we'll be doing it, and then if you feel that any patient is feeling giddy or they are hypoglycemic, like they'll be jittering, they'll be perspiring, in such type of things we'll be checking the blood sugar, because if the blood sugar is low, this thing can happen. So we'll be taking the blood sugar, the sample for the blood sugar we'll be taking. So this blood sugar is done by, there are three methods, that is fasting, postparental, and random. In fasting, we'll ask the blood, that will be in a planned way. That will be in a planned way. Like if it is in a diabetic patient, we'll ask them to come fasting in the morning. So early morning we'll take the blood, that is will be the fasting sample. And after fasting, we'll ask them to take the breakfast. A good breakfast we'll ask them to take, and after 2 hours of that, we'll be collecting the blood. That is called postparental. Sample. So that is after taking the food. Then the third is random, means any time. Now you have gone, means immediately they will be taking the blood. That is random. So it is the that is the random. Now the normal levels in random. The fasting blood glucose in normal cases from 70 to 110 gram per deciliter. 70 to 110 gram per deciliter. In fasting it will be 80 to 140 gram per deciliter, and in random it will be about 140. In random it will be about 140. So that is about the glucose estimation. Now the second thing what we do whenever a patient gets admitted, or the sample blood collection we will be doing is, that is the electrolytes. In electrolytes, that's again in the plain tube. So all these biochemistry samples will be taken in the plain tube. Plasma glucose estimation, that is electrolytes, then LFT, that is the liver function test, RFT, that is the renal function test, then the cardiac enzymes. All these things we will be taking in the plain tube only, because we will be using the serum or the plasma to do the examination. After centrifuging, the serum will be taken, and after that anticoagulant will be added, it will be centrifuged, and then the test will be applied to the machine, and the result will be taken. So it's all will be taken in the plain tube. So next is the electrolytes. In electrolytes we will be estimating the sodium. Sodium, what will it indicate? Sodium
will be indicating when sodium will see, we have seen in fluid electrolyte balance. In electrolytes we collecting sodium, potassium, chloride, calcium, uric acid. These are the things, magnesium. These are the things you will be collecting in electrolytes. So in electrolytes sodium will be checking to see if the sodium level is high or low, because if the patient is having we usually will say hypotension है. हाइपोटेंशन में क्या होता है, बॉडी लेवल कम, फ्लूइड लेवल कम हो जाती है बॉडी में, या सॉल्ट लेवल कम हो जाती है. इट कैन बी ड्यू टू डिहाइड्रेशन, इट कैन बी ड्यू टू एक्सेसिव पर्सपिरेशन, इट कैन बी ड्यू टू एक्सीडेंट के दौरान ब्लड लॉस हुआ बॉडी से, उसके कारण तो सोडियम वगैरह जो कम होगा. तो इन दैट केस विल बी गिविंग रिगरलैक्टेट ऑल्सो नॉर्मोसलाइन IV fluid will be given. सो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स में आता है सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, यूरिक एसिड को अपन इलेक्ट्रोलाइट्स में करते हैं. देन है अपन जो देखते हैं दैट इज अबाउट द LFT, दैट इज लिवर फंक्शन टेस्ट. लिवर फंक्शन टेस्ट में अपन क्या क्या देखते हैं, फंक्शन ऑफ द लिवर, हाउ अपना लिवर काम कर रहा है. तो लिवर फंक्शन टेस्ट में अपन देखेंगे बिलिरुबिन देखेंगे, बिकॉज लिवर से जो बिलिरुबिन एक्सक्रीट होता है. तो बिलिरुबिन देखेंगे, बिलिरुबिन में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन देखेंगे. देन विल बी सीइंग द SGPT एंड alkaline phosphatase. These are the things which will be saving in liver function test. क्योंकि अगर लिवर खराब है तो क्या होगा, देयर आर चांसेस ऑफ जॉन्डिस, बिलिरुबिन हाई रहेगा, देन SGPT रेज रहेंगे, अल्कलाइन फॉस्फेटेस रेज रहेंगे. तो लिवर को फंक्शन को देखने के लिए अपन लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं कि लिवर हमारी, क्योंकि दिस इज ईच ऑर्गन्स के ऊपर है. हमारी ईच लिवर फंक्शन टेस्ट हमारे लिवर के फंक्शन को बताता है. तो वी डू द लिवर फंक्शन टेस्ट. देन इज RFT बताता है हमारे रीनल फंक्शन के बारे में, दैट इज किडनी के फंक्शन के बारे में. तो उसमें क्या है कि BN क्रिएटिनिन करता है. जो BN क्रिएटिनिन करता है उसमें, तो उसमें क्या है कि अगर हमारा BN क्रिएटिनिन जो है अपन इसमें क्या है कि BN क्रिएटिनिन करते हैं, यूरिया जो है BN क्या होता है, यूरिया भी बोलते हैं अपन इसको. तो इसका नॉर्मल लेवल रहता है 7 to 20 mg पर डेसीलीटर, to 7 to 20 mg पर डेसीलीटर, और 2.5 to 7% मिलीमोल्स पर लीटर इसका रहता है. तो इसके कॉजेस मेनली क्या रहता है, तो जो प्री रीनल कॉज हो गया, दैट इज रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू द किडनीज हो गया. तो उसके कारण वो कैसा, किसके कारण होगा, इट मे बी ड्यू टू डिहाइड्रेशन, इट मे बी ड्यू टू ब्लड लॉस, इट मे बी ड्यू टू रिड्यूस्ड कार्डियक आउटपुट. Then next is about the post renal causes, that is due to obstruction of urine outflow, और urine outflow ठीक से होता नहीं है. That can be due to any mass in the ureter में कुछ प्रॉब्लम होगा, ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम है, या किडनी के यूरेटर में किडनी से पास आउट नहीं हो रहा, उस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण में होता है. देन नेक्स्ट इज अबाउट द acute glomerular nephritis, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स, फिर स्टोन यूरेटर में रहता है, ब्लैडर में रहता है, ट्यूमर्स हो गया, एनलार्जमेंट ऑफ यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो गया. ये सब केसेस में क्या होता है कि BN क्रिएटिनिन की लेवल्स डिफर्ड रहती है. तो क्रिएटिनिन में अगेन इसका नॉर्मल वैल्यू रहता है 0.9 to 1.5 इन मेल में 0.9 to 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहता है, और फीमेल में 0.6 to 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहता है, जो है सीरम क्रिएटिनिन जो होता है. तो ये हमको क्या बताते हैं, इट टेल्स अबाउट द फंक्शन ऑफ किडनीज के बारे में बताता है. नाउ कार्डियक एंजाइम्स आता है. कार्डियक एंजाइम्स क्या बताता है, इट कैन फंक्शन ऑफ द कार्डियक फंक्शन के बारे में. हमारी कार्डियक फंक्शन के बारे में पता करने के लिए व्हाट विल यूज द कार्डियक एंजाइम्स करते हैं. तो कार्डियक एंजाइम्स में हम CPK-NB करते हैं, कोलेस्ट्रॉल करते हैं, कोलेस्ट्रॉल में HDL LDL करते हैं. तो हमारे बॉडी के जो फैट एक्यूमुलेशन और जो चीज़ें हमारे आर्टरीज को अथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करता है या ब्लॉक करता है, उस चीज़ के बारे में क्या अपन इसके वैल्यूज से करने से अपन को वो चीज़ पता चलता है. सो दिस आर ये है. तो ये हो गया कि ग्लूकोज लेवल, ब्लड की ग्लूकोज लेवल के बारे में. देन इलेक्ट्रोलाइट्स विल डू द होल बॉडी. LFT लिवर का फंक्शन बताता है. RFT तुम्हारे किडनी का फंक्शन को बताता है.
कार्डियक एंजाइम्स हमारे कार्डियक फंक्शन को बताते हैं। अब बचा हमारा लंग फंक्शन। लंग फंक्शन को किससे पता चलता है? दैट इज बाय डूइंग द ब्लड गैस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट्स। नाउ विल बी सीइंग अबाउट द ब्लड गैस। तो ब्लड गैस कैसे करते हैं? ब्लड गैस में हमेशा हमको आर्टीरियल ब्लड गैस चाहिए रहता है। तो हाउ वी विल टेक द आर्टीरियल ब्लड गैस? तो आर्टीरियल ब्लड गैस हम कैसे लेते हैं? वी हैव टू पैल्पेट आर्टीरियल ब्लड गैस हम लेते हैं हमारी या तो हम जो रेडियल आर्टरी या अल्नार आर्टरी से हम पैल्पेट करते हैं, जहाँ पे हमको पल्सेशन अच्छे से मिलता है। तो इट शुड बी बिकॉज आर्टरी तो क्या पल्सेट करेगा अच्छे से वेरस वीनस में फीबल रहेगा। तो अच्छे से जहाँ पैल्पेट करता है उसका पैल्पेट को देखते हुए अपन वहाँ पे नीडल को डालते हैं। नीडल में यूजुअली विल टेक द पतला वाला 1 ml सिरिंज अपन लेते हैं उसमें, क्योंकि हमको एक ABG करने के लिए सिर्फ हमको 0.3 to 5 ml भर लगता है मशीन में डालने के लिए। तो वी टेक, तो उसके पहले में उस ट्यूब को हमको हेपेरानाइज करना है। दैट इज वी टेक ए हेपेरिन वैन, नीडल को उसके अंदर में एयर को नीडल के अंदर करेंगे और हेपेरिन आएगा, उसको जस्ट विल रिंस दैट एंड विल टेक और हेपेरिन को वापस हम क्या है कि सिरिंज में डाल देते हैं। दैट्स हाउ विल हेपेरानाइज द सिरिंज। तो उस सिरिंज में हम उसको लेते हैं, देन विल पुट इट इन द आइस क्यूब्स और आइस वाटर एंड विद दैट विल बी टेकिंग टू द ABG मशीन में उसको डालते हैं। तो उसमें हम क्या क्या देखते हैं? ABG में हम इन ABG विल यूजुअली सी अबाउट pH ऑफ द ब्लड क्या है हमको पता चलता है। देन विल सी अबाउट द PO2 दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। देन विल सी अबाउट द PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देन बाइकार्ब, सो क्योंकि ब्लड एसिडिक है कि एसिडोसिस है कि अल्कलोसिस है, तो हमको उसका बाइकार्बोनेट से पता चलेगा। एंड देन ऑक्सीजन सैचुरेशन। ये इतनी चीज़ें हमको ब्लड गैस से पता चलती है। ये हमारा बताता है फंक्शन होता है लंग्स, हमारी लंग्स की कंडीशन क्या है उससे पता चलता है। तो pH ऑफ द लेवल क्या है? pH ऑफ द ब्लड हम नॉर्मली क्या है कि 7.36 to 7.42 7.36 to 7.42 ये क्या है कि एसिड बेस बैलेंस को बताता है। ब्लड गैस लेवल, क्योंकि हम यूजुअली ब्लड गैस लेवल को हम कब करते हैं? ड्यूरिंग लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस। सपोज द पेशेंट बहुत साइनोस दिख रहा है, उनके लिप्स ब्लू है, चेहरा पिंक नहीं है, हमको लग रहा है कि पेल है, तो उस कंडीशन में क्या है? वी विल डू द ब्लड गैस एग्जामिनेशन। तो ब्लड गैस जब करेंगे, एक pH बताता है, एसिड बेस बैलेंस बताता है, देन FiO2 दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वो अबव 70 to 80% के अबव होना चाहिए। और अबव 60 इन जो COPD पेशेंट्स एस्थमेटिक पेशेंट्स रहता है उसमें अबव 60 भी एक्सेप्टेड है। सो विल बी सीइंग अबाउट PO2 और FiO2 शुड बी अबव 60 और 70 to 80% होना चाहिए। देन PCO2 क्योंकि वो ऑक्सीजनेशन लेवल ऑफ लंग्स बताता है। देन PCO2 वो बताता है कार्बन डाइऑक्साइड कितना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा शुड बी बिलो 50 mm ऑफ Hg होना चाहिए। क्योंकि अगर उससे ज़्यादा है, अगर 40 या 50 mm ऑफ Hg से अगर कार्बन डाइऑक्साइड PCO2 लेवल है या FiCO2 लेवल अगर ज़्यादा है, मीन्स इट इंडिकेट्स दैट देयर इज कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन है अंदर में। तो उस केस में क्या करना पड़ता है हमको? उसको निकालना। तो वी हैव टू वेंटिलेट द पेशेंट। तो वेंटिलेट करके हम उसमें जो RR रेस्पिरेटरी रेट रहता है उसको हम इंक्रीज़ करते हैं, ताकि इंक्रीज रेस्पिरेशन से वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो सके बाहर में। तो pH हो गया, FiO2 हो गया, FCO2 हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बाइकार्बोनेट लेवल। बाइकार्बोनेट लेवल हमको बताता है कि एसिडोसिस है कि अल्कलोसिस है। तो वो चीज़ क्या है कि वो हमको बाइकार्बोनेट लेवल बताता है। यूजुअली बाइकार्बोनेट लेवल नॉर्मल रहता है 22 to 26 मिलीगैलन पर लीटर। तो ये डिस्टर्बेंस बताता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बताता है अगर हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ H2CO3 रहता है ड्यू टू इम्पेयर्ड रेस्पिरेशन, निमोनिया। ऐसे केस में क्या होता है कि जब H2O3 एक्यूमुलेशन रहता है, इम्पेयर्ड रहता है, तो उस केस में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अल्कलोसिस होता है जब डिक्रीज्ड H2CO3 लेवल रहता है, और ड्यू टू हाइपर वेंटिलेशन जब डिक्रीज रहता है तो अल्कलोसिस होता है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होता है। और वैसे ही
वैसे जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस रहता है जब एक्सेस एसिड प्रोड्यूस करता है और किडनी जब क्या है कि वेस्ट को रिमूव नहीं कर पाता है, लाइक कीटोएसिडोसिस केसेस में सब, लैक्टिक एसिडोसिस केसेस में सब जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। द मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जब एक्सेसिव लॉस ऑफ एसिड फ्रॉम द बॉडी होता है, लाइक एक्सेसिव वॉमिटिंग होता है। तो ये सब केस में क्या है कि हम बाइकार्बोनेट हम इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन देकर उसको करेक्ट करते हैं जो एसिडोसिस एल्कलोसिस का। तो वो डाइल्यूटेड फॉर्म में हम बाइकार्बोनेट ये देते हैं, उससे हम करेक्ट करते हैं। देन है सैचुरेशन इट शुड बी अबाउट 95%। वो हम बताता है कि हमारे बॉडी की पूरी बॉडी की ऑक्सीजनेशन क्या है, नॉट ओनली लंग, कंप्लीट बॉडी की ऑक्सीजनेशन क्या है। क्योंकि वो हम क्या कि एक क्लिप जैसी चीज़ को हम फिंगर में लगाते हैं, पैर के फिंगर में, हाथ के फिंगर में, कान के टिप में लगाते हैं, जो हमको बताता है, सैचुरेशन बताता है। तो वो क्या है कि दैट कम्स ऑफ द ऑल ब्लड। सो दैट्स अबाउट द ब्लड गैस। तो ये क्या कि ब्लड गैस इज़ वेरी important for knowing the function of lungs। ब्लड गैस हम फंक्शन ऑफ लंग्स को देखने के लिए तो हम देखें ब्लड केमिस्ट्री में कि वो जो ब्लड शुगर करते हैं, ब्लड शुगर में फास्टिंग पोस्टपोरंडम रैंडम करते हैं। देन वी डू इलेक्ट्रोलाइट्स, देन वी डू LFT for knowing the liver function test, RFT for knowing the renal function test, cardiac enzymes for knowing the cardiac condition, blood gas will be doing for knowing the condition of the lungs। So this was about the blood biochemistry। अब एक है कल्चर एंड सेंसिटिविटी। ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी हम करते हैं, दैट हैज़ टू बी डन इन a very sterile way। Before taking the blood we have to clean the area very nicely with the betadine एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, अल्कोहल से हम बहुत अच्छे से क्लीन करके ग्लव्स, स्टेराइल ग्लव्स पहन के हम ब्लड को निकालते हैं और हम मीडिया में उस ब्लड को डालते हैं। दैट इज इट विल बी अगार मीडिया में उस ब्लड को डालते हैं और एक बॉटल रहता है उसमें वो फ्लूइड रहता है, उसके अंदर में उसको डालते हैं। उसके बाद हम लैब में भेजते हैं। तो लैब में भेजते हैं तो फिर वो उसके बाद में उस ब्लड को दे डू एग्लूटिनेशन करते हैं। उसके बाद में पेट्री डिश में डाल के यूज टू कीप अंडर द कल्चर, जहाँ पे इनोकुलेशन करते हैं, जहाँ पे हमको इट टेक्स अबाउट 72 आवर्स। तो फर्स्ट 24 आवर्स में हमको ये पता चल जाता है कुछ ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है क्या। हाँ, आफ्टर 48 आवर्स में क्या ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है क्लियर हो जाता है। और फिर हम कौन से ड्रग्स के लिए दे आर सेंसिटिव और या रेसिस्टेंट है वो हमको पता चल जाता है। तो उसके हिसाब से कि हम अगर कोई रेसिस्टेंट है तो वो ड्रग अगर हम स्टार्ट कर दिए तो उसको कैंसिल करके जिससे सेंसिटिव है उस एंटीबायोटिक हम स्टार्ट करते हैं। और हमेशा हम ब्लड कल्चर लेने के पहले हमको एंटीबायोटिक्स पेशेंट को नहीं देना है। अगर हम एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं तो उसके बाद ब्लड कल्चर लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज द कल्चर विल बी स्टेराइल। सो यहाँ पे हम वी फिनिश ऑफ विद द ब्लड सेल काउंट, दैट हीमोग्राम कंप्लीट हो गया एंड ब्लड बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो गया एंड वी आर कंप्लीटेड विद द कल्चर एंड सेंसिटिविटी। होप यू हैव अंडरस्टूड। Go study and ask doubts after that.